Hello, friends. Welcome back to the Physical Society, a lovely channel to learn physics. So, today we are going to discuss about simple harmonic motion, the potential energy in the simple harmonic motion, and how can we represent the simple harmonic motion into a circular motion. Okay, now let us see. So, in the last section, we discussed about the terms which are related to SHM. The terms were amplitude, the phase constant, phase, angular frequency, time period, and frequency. So, if you want to know what they physically represent, you can go to the last video that was uploaded earlier, one day before. So today we are going to discuss about how can we represent our simple harmonic motion in a circular motion. So let us see. Keep calm, take some breath, and make sure you are listening very carefully. Now, as we all know from the earlier lectures, we can represent a simple harmonic motion as such: x is equal to a sine omega t. So that means we can represent this function as a sine wave. So on the y-axis, now you can see x here, but this x we are taking it on the y-axis. Actually, what I want to say is that the x here is being taken on the vertical axis, and the horizontal axis is representing time here. That means if we proceed in this direction, we are going further in time, and if in this direction we are moving, that means we are displacing ourselves from the mean position, and at most the amplitude is the maximum displacement from the mean position. So the peak values of the sine curve here are basically representing our amplitudes. This means this is our positive amplitude and this is our negative amplitude. Actually, the wave should look like this. Still, this is somewhat bigger than the earlier one, so we can make it a bit. Now it is okay. So this is our plus a and this is our minus a. So to represent this motion in a circle, let us take two lines, one horizontal and one vertical as such. So let us first of all consider the circle of radius a. That means of this much radius we have to draw a circle which has a radius a. Okay, now suppose we are starting from here at time t is equal to g0, we are here. So after some time, so our peak is at pi by 2. So this means as we move further in time, so let us take at some time between our maximum values. Let us take some three values. This is for pi by 6, this is for pi by 4, and this is for pi by 3. That means this is for 30 degree. At 30 degree we are here. At 45 degree we are about here, and for 60 degree we are about here. But actually at 30 degree, as we know, our value is 1 by 2. That means we are half value of the original motion. So at 30 degree we should actually be there.
about half of the amplitude. Okay, that means in this case for about 30 degree we should be here. Now you can easily understand. Now, so actually our y axis is representing, suppose for this value, the corresponding value of y on the circle would be this. That means our amplitude vector in a circle, that means actually you don't have to draw like this. I am just making sure that we are in a circle. So for the amplitude we are here, that means our amplitude should be here. So I think this is somewhat shorter, so I think this should be somewhat longer like this, so that we can make a proper circle. Actually this should be like this. So what I want to say is that this is our A and this is our angle omega t. Okay, now A sin omega t is actually, देखो, this is our A cos omega t up to here, and this is our A sin omega t. So actually our function is A sin omega t, so which is representing x if we are taking it in this direction, but on a graph we are assuming our x to be on the y axis. तो हम कहना क्या चाहते हैं, देखो कि हमारा जो y एक्सिस है SHM के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली में हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो इस तरीके से आप जो वेरियस पोजीशंस हैं इसकी, उसको आप सर्कल में लेते हो, ठीक है। सो एवरी टाइम ए आवर रेडियस वेक्टर इज मूविंग लाइक दिस, सो वट एवर जो भी हमारा ये y कंपोनेंट हमें मिलता है ए साइन ओमेगा टी, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है फ्रॉम दी मेन पोजीशन और सर्कल में ऐसे, ठीक है। इस तरीके से जब आप कर्व में आगे जाओगे, अगेन जब आपकी ये वैल्यूज, सिमिलर वैल्यूज आपको यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, तो इस तरीके से आप ये सर्कल को कंप्लीट करेंगे लाइक दिस। ओके, फॉर द नेगेटिव एम्पलीट्यूड पहले क्वाड्रेंट में आप यहां से लेके यहां तक 0 से 90 डिग्री, 0 से π/2 आप यहां तक गए, देन अगेन 90 से 180 आप अगेन 0 पे आ गए, आपका एम्पलीट्यूड फिर से आपका एम्पलीट्यूड का y कंपोनेंट कितना हो गया 0, अगेन 0 पे आ गया, फिर से नेगेटिव कंपोनेंट बढ़ना शुरू हुआ, फिर से आपका जो y कंपोनेंट है आपके एम्पलीट्यूड का फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इस वैल्यू पे ये एम्पलीट्यूड दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो y एक्सिस है ये आपका x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ आई होप अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसको सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक एन अनदर केस फॉर एन इंस्टेंस। अभी हम मान के चल रहे थे कि हमारा जो SHM है दैट इज एक्चुअली विद अ फेज कांस्टेंट ऑफ 0, कि हमारा जो फेज कांस्टेंट है वो 0 है, क्योंकि हम हमारे फंक्शन में ओनली साइन ओमेगा टी है। मे भी हो सकता है हम किसी इनिशियली किसी और एंगल से शुरुआत करें, तो सपोज हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ एंगल से, ठीक है। तो सपोज आप शुरुआत कर रहे हो कि आपका जो इनिशियल फेज है, इस फंक्शन को आपने लिख लिया, x इज इक्वल टू आपका एम्पलीट्यूड आपने ले लिया 2 साइन ओमेगा, सपोज आपका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज π/3 रेडियंस पर सेकेंड, कुछ ले लिया, इनटू t प्लस डेल्टा आपने ले लिया π/6। ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। ओके, π/6 यानी कि आप जब t का वैल्यू यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे, दैट मीन्स आप इनिशियली कहाँ पे हो वही हमारा क्या होता है फेज कांस्टेंट। तो एट दैट टाइम जब आप t को 0 सब्सटीट्यूट करोगे दैट विल बिकम साइन 2 sin π/6,
तो यानी कि आपका जीरो, जब आप टाइम जीरो है आपका, तो आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 6। दैट मीन्स आपके एम्पलीट्यूड पे, आप एम्पलीट्यूड तो आपका हो गया 2, यानी आप कहाँ पे हो, साइन की वैल्यू पाई बाई 6 होती है 1/2। ठीक है, तो आप कहने का मतलब शुरुआत कुछ यहाँ से कर रहे हो। ठीक है, आपकी जो साइन कर्व है फिर यहाँ से शुरुआत करेगी और मैक्सिमम तक जाने में 60 डिग्री का एंगल और कवर करेगी। फिर ये कर्व हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है कर्व, देखो समझ आ रही है कि आप शुरुआत में ही आपका जो वैल्यू है दैट इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका ऑलरेडी वैल्यू कुछ आगे से शुरू हो रहा है। अब आप इसको जब सर्कल में रिप्रेजेंट करो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें एम्पलीट्यूड को लेकर के सर्कल ड्रॉ करना है। दैट मीन्स हमारा जो एम्पलीट्यूड है इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग शुरू करेंगे हम। हमारा एट टी इज इक्वल टू 0 हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर डेल्टा। अब समझ में आ जाएगा आपको डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि हम शुरुआत किससे कर रहे हैं। समझ आ गया। और एम्पलीट्यूड हमारा इतना है, तो सर्कल की एक बार चेक करने के लिए इसको यहाँ से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज आवर डेल्टा एंड दिस अगेन आपका, अगर आप 1 सेकेंड या किसी भी टाइम टी के बाद मान लो चेक करते हो, सपोज किसी टाइम टी के बाद आप यहाँ पे हो, तो ये आपका डेल्टा हो गया और ये आपका ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका एंगल है दैट इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा। सो दैट टोटल एंगल इज एक्चुअली, ये जो फाई बन जाएगा दैट इज फेज। ओके, नाउ अब हम आगे फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे सोचना शुरू कर दो। देखो, जब कभी भी ऐसा कोई सिस्टम है इन विच सिस्टम एक्चुअली सिस्टम या तो आपस में अट्रैक्ट हो रहा है या फिर रिपेल हो रहा है। ओके, तो क्या होता है, जब आप देखो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बट आप इसको दूर लेके जा रहे हो, तो जैसे ही आप छोड़ोगे इसको ये फिर से नजदीक आने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स जो आप काम कर रहे हो, द वर्क दैट यू आर डूइंग इन टेकिंग दिस अपार्ट, इसको दूर लेके जाने में जितना आपने काम किया दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास एनर्जी आ रही है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ इन आवर सिस्टम द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM। सो दैट मीन्स कि हमारा पार्टिकल सपोज कुछ ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज आवर राइट मोस्ट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज आवर लेफ्ट एम्पलीट्यूड। तो दैट मीन्स हम किसी बीच की पोजीशन x पे चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सपोज जब ये पार्टिकल अपना मीन पोजीशन पे है, दैट मीन्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, अपना मीन पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम में। और ये SHM एग्जीक्यूट ही क्यों कर रहा है, देखो पहले से एक दिमाग में लेके चला करो कि हम स्प्रिंग मास सिस्टम मान रहे हैं कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड मास है और ये इसका मेन पोजीशन है। तो स्प्रिंग को जब आपने कंप्रेस नहीं किया, स्ट्रेच नहीं किया, तो वो क्यों फोर्स लगाएगा, अपने नेचुरल पोजीशन में चुपचाप बैठा है बेचारा। ठीक है, तो जब आपने थोड़ा स्ट्रेच किया तो अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या होती है। देखो, सपोज आप इसको खींच के यहाँ पे ले आए, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ सीधा तो नहीं आया, धीरे धीरे करके आप लेके गए हो, तो बीच में जब ये किसी पोजीशन पे था, समझ में आ रहा है, तो बीच में मान लो ये यहाँ पे था जब, तब इस पे जो फोर्स लग रहा था उससे आगे किसी पोजीशन पे गया, तब जो फोर्स लग रहा था क्या हर कंडीशन में सेम लग रहा है? नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग का फोर्स होता है दैट इज -kx। दैट मीन्स आवर फोर्स इज
चेंजिंग लीनियरली विद द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स जैसे जैसे आपका एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है आपके फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा हमारे इस मास के ऊपर। तो इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट क्यों करते हैं, जरा आप अगर 11th में हो अभी तो इंटीग्रेशन करते क्यों है, देखो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना किसी चीज को। इंटीग्रेशन का मतलब है सम अप करना है। सम अप का मतलब जोड़ना, या आप छोटे छोटे एलिमेंट्स ले रहे हो और उन सबको जोड़ के जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आप कैलकुलेट करते हो थ्रू इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सपोज हम बीच में मान लेते हैं पार्टिकल को, यहाँ है कहीं पे, उस टाइम स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है कुछ लेफ्ट साइड में, दैट इज माइनस के एक्स। और अगर आप इसको राइट में लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको भी उसके बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा फोर्स होता है वो हम कैलकुलेशन में क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज कैलकुलेशन में इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टोर सिर्फ कितना होगा, जो इसके बराबर मैग्नीट्यूड से जो हमारा वर्क डन होगा वही स्टोर होगा, ठीक है। तो सपोज आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, कुछ आगे ले गए आप इसको यहाँ पे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, dx। So for the dx displacement you are applying a force k into x, इसके बराबर ही फोर्स लगा रहे हैं हम, कैलकुलेशन के लिए बराबर ही यूज करेंगे। तो kx फोर्स आप राइट साइड में लगा रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में है, ठीक है। तो हमें कहां से कहां निकालना है, जब हमारा x इज इक्वल टू 0 था और x यहाँ पे a हो गया, या हम बीच की किसी वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हैं x के लिए, ठीक है। तो हम x के लिए निकाल लो चाहे a के लिए निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, हम एक छोटा सा वर्क डन हमने किया dw, चलो इसको इधर लिखते हैं लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट मूव करना आसान रहेगा। नाउ सपोज dw इज इक्वल टू f डॉट dx, ओके। नाउ आपका जो f है दैट इज kx डॉट, इसका मैग्नीट्यूड हो गया है तो इनटू dx, ओके। डॉट नहीं लगाते हैं, चलो दोनों का मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, इनटू कॉस थीटा। थीटा कितना है दोनों के बीच में, आपका फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट मींस एंगल इज 0 डिग्री। सो दिस विल बिकम kx इंटू dx। तो अब हम छोटा सा वर्क डन तो निकाल लिया, हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। सो फॉर दैट वी विल इंटीग्रेट दिस ऑन बोथ साइड्स। हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको 0 से w तक, इसको x कहां से कहां लेके जा रहे हैं, 0 से a तक, या आप x तक निकाल लो, बीच में किसी वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हो, x के लिए निकाल लो, ठीक है। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, अब इसको जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है जरा इसको देखो आसान बना के करते हैं एक बार। dw के आगे कुछ नहीं है, आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, w के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स w रेज टू पावर 0, ओके। तो w रेज टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, ओके। और ये जो c कांस्टेंट होता है दैट मीन्स जब आप डेरिवेटिव करते हो ना किसी चीज का, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, ओके। तो जब डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट हमारे गायब होते हैं वो कांस्टेंट हमारे इंटीग्रेशन में वापस आ जाते हैं, ओके। सो इस कांस्टेंट को हम एक बार के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका w रेज टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट w। On the right side k is a constant, that is a spring constant, that means it will come out of the integration, integration of x will be x की पावर कितनी है 1, so that means x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1 limit 0 to x। तो जिसको जब आप इंटीग्रेट करोगे that will become w, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू k
एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वेयर. So our W will be equal to half kx square. So ये आपका क्या आ गया, वर्क डन. और यही वर्क डन आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी. सो आपका जो नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू x, कितना हो जाएगा, हाफ kx स्क्वेयर. ओके.